मैम मणिपुर के बारे में इंफॉर्मेशन तो मैम मैंने अजीब को दे दी। यस मैम, मेरी अच्छा बात चल रहा है सुनो। मैम मैं प्रोजेक्ट वाला तो। हाँ, बस ये आंसर देना। आदि एक बात सुनो, ये जो यस मैम। मोबाइल है ना, मोबाइल मोबाइल है ना, मोबाइल में यूट्यूब में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट बना के। यस जस्ट गो मैम। एंड सी, डोंट कॉपी। तो हमारा टॉपिक अलग है, यस मैम। हम लोग को देख रहे, बट डू नॉट राइट एनीथिंग फ्रॉम देयर बिकॉज इट विल नॉट मैच विद आवर टॉपिक। ओके, ओके मैम। लेट्स टॉक अबाउट आवर सिलेबस। हमारा हिस्ट्री में चैप्टर 6 था, चेक करो। यस मैम। एंड देन ज्योग्राफी 8 9 था उसको काट के 6 कर दिया, क्योंकि दूसरे सेक्शन में नहीं पढ़ाया हमने। ज्योग्राफी चैप्टर 6 फॉर गूगल फॉर्म, करेक्ट चैप्टर्स। Geography, instead of 8 and 9, it will be chapter 6 only. And then SPL is chapter 6 again. Understanding media, not markets around us. Please do the correction. History 6, Geography 6, SPLB 6. This is for Google Form, okay? ओके मैम। Okay. सबने करेक्शन कर ली? यस मैम। ओके, काम बढ़िया चलाओ और चलो पढ़ते हैं। Today start the class. यस मैम। थोड़ा सा ले लो। ओके चिल्ड्रन, वेरी गुड, आ जाओ सब। तो क्लास में आ जाओ, विल स्टार्ट। हम लोग कहाँ थे? पेज नंबर 94। The large tribe of Bhils was spread across western and central India by the late 16th century. आपको मैसेज मिल गया था मेरी? यस मैम, मिल गया था। Okay. Was spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindars. Many Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. Am I audible, children? यस मैम। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Project work is going on well. यस मैम। When are you supposed to submit, beta? मैम बाय 26 जनवरी। 26 तो रिपब्लिक डे ना, उसके बाद करो, 27 को करो। एंड एट द सेम टाइम क्लास प्रेजेंटेशन की तैयारी भी करो। ओके चलो। बाय द लेट 16th सेंचुरी मेनी ऑफ देम हैड, अभी सभी बुक में, तीनों बुक में 6 हो गया, 6 चैप्टर। वो दूसरा सेक्शन में भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैडम ने बोला ठीक है। मेनी Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. The Gonds were found in great numbers across the present states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Andhra Pradesh. How nomads and mobile people lived. What is the meaning of mobile? All of you are using mobile, isn't it? What does it mean? Mobile का मतलब क्या है? A device like a media or a machine. बोलते जाओ। Who said this? Mobile is like a ma'am Harsh. हर्ष बोलो। Ma'am, mobile is like a media on which we can see anything by internet or which we have work we can done by it. It You is are like a talking about machine. phone. Hers, you are talking about phone. I am talking about the word mobile. Ma'am, which mobile? word, शब्द। मोबाइल शब्द का अर्थ बताओ। That is a मैम, phone. हाँ। जो मूव कर सके। Yes. What is always in the movement? Mobile. Or what is always in the movement? Up wherever you go, you keep it in your pocket, and then it gives you a signal that it is calling, somebody is calling.
you can pick up, you can use. Mobile means movement, which is always in the move. That is called mobile. ठीक है? Earlier I used to say dictionary देखो, मोबाइल शब्द का अर्थ पता चल जाएगा. आदि देख के पढ़ो सबके सामने. You people do not use dictionary. That is a very bad thing. हमारे स्कूल में प्रेस्क्राइब किया गया you should have a dictionary. Oxford School Dictionary. It should be always in your bag. Geometry box should always be in your bag. Rough copy should always be in your bag. And then you should have school handbook. मैम परिवर्तनशील. मोबाइल का अर्थ परिवर्तनशील. मैम इसमें इधर यही लिखा है. वो हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश देखो. मैम मुझे मिल गया. मूवेबल सचल चलता फिरता. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. तुमने जो जल्दबाजी में कुछ भी देख लिया. चलता फिरता चीज जो ऑलवेज इन द मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड मोबाइल. ओके. द गोन्स वर फाउंड. कितना ये लोग कर रहे हैं. नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट. व्हाट इज पेस्टोरलिस्ट? दोज हु गो फॉर पेस्च्योर यानी चरना. Moved over long distances with their animals, they live on milk and other pastoral products. The other day I was talking about the Himachal Pradesh. They sell mawa and all to the people those who go to have a darshan of Amarnath ji. उसी को खा के, क्योंकि अमरनाथ जाने के लिए तुम हैवी फूड नहीं खा सकते. आजकल लोगों ने रास्ते में ढाबा खोल दिए हैं, पैसे नहीं लेते हो. They do not take any kind of money from anyone. फिर लोग जत्थे में जाते हैं, खाना खाते जाते हैं, दिन भर खाते पीते बढ़िया जाते हैं. उनको खाना कैरी करने की तो बहुत पहले नहीं था, तो ये गुज्जर लोग मावाद खिलाते थे. मिल्क. They also exchanged wool, lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. With settle. घी क्यों? दूध मिलता है तो घी बना लेते, घी रखते बना के, तो लोगों को बेचते हैं. और ऊल क्यों? क्योंकि उनके साथ भेड़ जाता है चरने के लिए. We settled agriculturists for grain. ये सब दे के ये अनाज लेते हैं उनसे, क्योंकि अनाज तो चाहिए ना खाने के लिए. उनके पास दूध घी है, अनाज थोड़ी लेना है, तो लोगों से अनाज लेते हैं. क्लॉथ कपड़े लेते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन लेते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट व्हाट दे नीड. ठीक है, उसको सब लेते हैं. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. The Banjaras were the most important trader nomads. Trader nomads. Trader मतलब who is a trader? आपने अब पढ़ा trader के बारे में. Who is a trader? Businessman. One who buys and sells goods. वो trader है. दुकानदार, व्यवसायी. They are And businessman. नहीं, बिजनेसमैन आप नहीं कह सकते. कपड़ा जो बेचता है वो भी बिजनेसमैन. आदित्य की दुकान में दवाई बिकता है तो ही जो बिजनेसमैन. ट्रेडर मीन्स जो ग्रेन्स बेचता है, व्यवसायी व्यक्ति. हाँ, बिजनेसमैन भी हो सकता है और व्यवसायी व्यक्ति ज्यादा है. द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स. देयर कैरावान वाज कॉल्ड टोंडा. क्या बोलता है? टंडा. जत्था, एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप. टंडा. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी used the Banjaras to transport grain to the city markets. ये इन्हीं के दरारे उन नोमाड्स को बुलाओ और इनको क्या करो ना. नोमाड मतलब घुमंत लोग है, घुमंत जाति के लोग है जो एक जगह में नहीं सेटल रहते हैं. अपना सब कुछ, कुत्ता बिल्ली चूहा सब भी लेके जाते हैं जहां जाते हैं. वो एक मुर्गी है उसको ले आते हैं. डॉग तो उनके साथ रहता ही रहता है. खुद ही रोटी खाते हैं, उसको भी एक रोटी दे देते हैं खाने के लिए. एम्परर जहांगीर
wrote in his memoirs, yani in his diary, that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. वो लोग जहाँ जाते हैं अपना सामान बेच देते हैं, कभी जड़ी बूटी है, कभी घी है, कभी ऊन है, उसको बेच के वो अनाज ले लेते हैं और फिर वो अनाज जो ले लेते हैं उसको दूसरी जगह में बेच देते हैं, कुछ तो खाने के लिए रखते हैं फिर बेच देते हैं, यही काम है. द ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. जब लड़ाई चलता है, जब युद्ध चलता है मुगल एम्पायर के टाइम में, तो ये लोग क्या करते हैं ना, अनाज खाने की दाना जो है, अनाज फूड ग्रेन्स उसको पहुंचाते हैं मिलिट्री के पास, सेना के पास. With a large army, there could be 1 lakh bullocks. 1 lakh bullocks, सोचो जरा, too much carrying grain. इतने सारे, कभी तो कोई गाड़ी भी रहता बुलक का, नहीं तो उसके पीठ में इसे लाद देते हैं, वो लेके चलता अकेला बेचारा. ये तो कितने हुए थे, 18 खाली हो रहे हैं तुम्हारे क्लास में, ज्यादा बच्चे नहीं है. यू हैड अ क्लास बिफोर, दिस इज द लास्ट क्लास. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, एट व्हाट टाइम? Ma'am, 12. I'm 12. आई हैड अ क्लास एट 1 o'clock. तो तुम्हारा क्लास 1 o'clock होगा, 12 o'clock नहीं. पहले तुम्हारा क्लास, तुम्हारा जो कौन सा क्लास था? Ma'am, maths था. Maths था. तो तुम्हारा जो मैथ्स क्लास है और उसके तुरंत बाद मेरा क्लास होता था कि थोड़ा गैप देके होता था? Ma'am, gap दे के हाँ, एक होता पीरियड था. का गैप. हाँ, बस 2 o'clock हो गया, बहुत सर्दी हो रहा है. Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. ये चोरियां भी करते हैं बहुत ज्यादा, चोरा माल इधर उधर करते, कहीं से चोरी करके कहीं बेच देते हैं, ऐसा करते हैं. तो ये जो यहाँ के नोमाड्स जो आते हैं ना, ये जो बन जाए कंजर लोग, दे आर रियली डेकोइट्स. मेरे घर में चोरी करा है उन्होंने, इधर ही खेल में. और मिनी शर्मा मैडम और कौन सी मैडम थी, झुम्पा मैडम, उनका सारे गहने लूट लिए, सारे ज्वेलरी ले गए उन्होंने. मेरा तो साड़ी कितना लिया मानो, 3 तो पता है, बाकी पता नहीं. मैम, उनका मैंने पता चलो बच्चों को भी करते हुए देखा है. है. जरा में बच्चों को भी करते हुए देखा है, बच्चों को चोरी करते हुए देखा है. हाँ, नहीं मुझे नहीं मालूम, वो बड़े लोग चोरी किया मेरे घर से. Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. मैंने सुना है यहाँ से भैंस चुरा के ले जाते हैं, लेके रातों रात बहुत दूर जाके फिर बेच देते हैं. गायों को तो कोई नहीं चुरा रहा है, पर भैंस को चुरा रहे हैं. डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स. पेडलर्स मतलब ये घूमंत वाला जो घूम घूम के बेचते हैं. पेडलर्स जो ड्रग बेचते हैं उनको भी ड्रग पेडलर्स बोलते हैं. वो तो चुपके चुपके बेचते हैं, कहीं जाके दुकान खोल के थोड़ी बोलते हैं. ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज. दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स. वेयर्स मतलब चीजें, सच एज रोप्स, हार्डवेयर, रोप्स, रीड्स. रीड्स मतलब घास होता है, पानी में होता है, उसमें ना वो चटाई बनाते हैं, चटाई, तो सोने के लिए मैट भी बनाते हैं. रीड्स, उसको स्टाइलस भी बोलते हैं, उसमें पेन बनाते थे पहले. रीड्स, straw matting and coarse sacks. बोरिया भी बेच रहे हैं. Sometimes mendicants acted as wandering merchants. कभी कभी जो साधु लोग घूमते हैं ना, वो भी सामान लेके बेच देते हैं. मैं तो देखा खूब जड़ी बूटी लेके बेचते हैं. हमारे घर में भी आके बताते थे, ये ले लो, सांप काटने से ये अच्छा है, ये और अच्छा है. कभी कोई दवाई दे जाते हैं. There were castes of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. तुमने देखा कोई ना योगा करते हैं, ये समरसॉल्ट वगैरह करते हैं, ये सब उछल जिम्नास्टिक, तार के ऊपर चलने लग जाते हैं, ऐसे दिखा के भी करते हैं. खुद को मारते रहते हैं ऐसे करके, उछल ऐसे. कांटे पे भी बैठ जाते हैं, हैं? कांटों पर भी बैठ जाते हैं. हाँ, तो पैसा कमाने के लिए ऐसे परफॉर्म करते हैं ना.
चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। एज हायरार्की मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा हायरार्की। एज इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रीव, पीपल विथ न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। जैसे पहले तो सीधे साधे समाज था हमारा, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट, देयर वर नो डिफिकल्टीज, people had no more did not have many demands, they could satisfy themselves with little money. Do you understand that? So but slowly the society grew. As the society grew, more people came, more needs are there, so things are growing. Of society grew, people with new skills were required. As the society grew, there are more works are needed, so things are there. Today there is no class, we cannot come, you people cannot come to the school, that's why technical things are needed, so skills are needed, so we have Yes, to ma'am. learn, and then we are teaching you. Similarly, smaller castes or jatis emerge within Varnas. A caste ki there are many subcastes. A caste has many subcastes. For example, new caste appeared amongst the Brahmins. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society. अब जाति की तौर पर सोसाइटी बनी है, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, you know, such kind of things formed. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of jatis. Specialized artisans, smiths, carpenter, what is smiths? Blacksmith, goldsmith, sonar, lohar, ऐसे, blacksmiths and smiths, carpenters, who is a carpenter? One who works with the wood, and masons, one who builds the houses. मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, मैम कारीगर। कारीगर नहीं बोलते उसको, मैसन इज राजमिस्त्री, मिस्त्री है वो। वे आर ऑल्सो, तुम लोग कारीगर बोलते हो? यस मैम, हमारे यहाँ तो कारीगर ही बोलते। तो बोलते होंगे, पर masons are they work with the cement, they build house, construct house, and masons were also recognized as separate jatis by the Brahmanas. Jati Brahman, they were supposed to be the superior, and they used to make such kind of things. Jatis rather than varna became the basis for organizing society. और वो लोग क्या कर रहे हैं, साथ वर्ण का तो आई कैनॉट क्लासिफाई विद अ बिट, वर्ण मतलब काला गोरा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, सो आई नॉट टेल यू नाउ। डेलिबरेशंस ऑन जाति, इसमें पढ़ते हैं क्या ये 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन। देखो हम सब कहते हैं कि भगवान ने जाति बना के भेजा, नहीं, भगवान ने कुछ नहीं भेजा, वी क्रिएटेड एवरीथिंग, वी मेड एवरीथिंग फॉर आवर कन्वीनियंस and it became established. A 12th century inscription from Viyakundan Udayyar in Tiruchirappalli Taluka in present day Tamil Nadu describes the deliberations. Deliberations means considerations in a sabha of Brahmanas. They deliberated on the status of a group known as Rathakaras, literally chariot makers. ये ना पूरी में एक अलग जाति है बिल्कुल। तो जगन्नाथ की जैसे समाज में हमारे अलग अलग 36 प्रजा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऐसे जगन्नाथ की भी इतने लोग हैं। कोई कपड़ा, उनका धोबी है, उनका नाई है, उनका रथ बनाने वाला है, ऐसा है। हमारे अगर गाड़ी खराब हो जाए, हम थोड़ी ना कारपेंटर के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? मैकेनिक के पास जाएंगे। हाँ, they deliberated on the status of a group known as Rathakaras, literally chariot makers. They laid down their occupations, which were to include architecture, building coaches and chariots. पहले कार तो था नहीं, रथ ही था, रथ में बैठ के जाते थे। Erecting gateways for temples, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम करते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन। जो नाई है वो थोड़ी ना ब्राह्मण बन जाएगा, नाई जो है आजकल नौकरी कर रहा है, और जगन्नाथ की उसमें ऐसा नहीं है।
नाई, जो नाई का काम कर रहा है जगन्नाथ का, जो धोबी का काम कर रहा है जगन्नाथ का, कपड़े धोने का, सेवा में भगवान की, तो उसका बेटा भी वही काम करेगा, वो पढ़ सकता है, जा सकता है। और उनका नाम है सेवक संप्रदाय, सेवक कम्युनिटी, वो दे डू दिस। स्टेटस ऑफ ए ग्रुप नोन एज रथकार, ये हो गया, which would include architecture, building coaches and chariots, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king. ये जो स्मिथ है, goldsmith, what does the goldsmith do? Goldsmith make gold jewelry for the king. Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They belong to different lineages. Lineages मतलब वंश. Such as Hunas, Chandalas. तुम जानते हो ये चांदलास है ना, इन्होंने खजुराहो टेम्पल बनाई, चांदला वंश के राजा लोग, Chalukyas and others. Some of these too had been tribes earlier. ये ट्राइब थे सब, फिर ये निकल के वहां से उस गुट से निकल के they have established their society. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the old rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became part of the caste. ये जो ट्राइबल लोग थे, जो घुमंत थे, नोमाड्स थे, they become a part of the society. पहले तो उनको बोलते तो बंजारे घूमते रहते, इनका क्या है, ठीक है। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and the northwest frontier had adopted Islam quite early. ये आदिब जो बैठा ना आज हमारे सामने, ये आदिब की जो फोर फादर्स है, पूर्वज है, यू आर नॉट ओरिजिनली मुस्लिम्स, योर फोर फादर्स हैव अडॉप्टेड। समझ में आ गया मेरी बात? क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम कहाँ से आएंगे? वी आर इंडियंस, देयर इज नो क्रिश्चियन, देयर इज नो मुस्लिम, but they invaded and come to our country, so some of them are either adopted Muslim. समझ में आ गया? There is nothing wrong in it. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. Ruling class means the kings. समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे क्लास में रोज रोज एक एक बच्चा कम होता जा रहा है, क्यों ऐसा? अभी 18 था, अभी 17 हो गया। Who left the class? मैंने देखा नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ आता है, ये गलत बात है। पहले तो बहुत अच्छा, 20 तारीख से जो एब्सेंट होगा उसका दोबारा टेस्ट नहीं लूंगी मैं, रोल नंबर वाइज लूंगी, 1 2 3 4 5। सब लोग रेडी होकर रहना, और आप लोग प्रोजेक्ट का काम भी चालू रखना। एक ही टॉपिक तो तैयार करना है कि नहीं, बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए वो वाला पढ़ लेना थोड़ा। अब तो कम हो गया सिलेबस तुम्हारा। A large majority joined the lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and northwest frontier had adopted Islam quite early. They continued to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. Orthodox means conventional, जो चला आता रहा है, ठीक है? The emergence of states is closely related to social change
amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. Closer look, the Gonds. जैसे हम लिखते हैं अपना नाम संघमित्रा ब्रह्मा, वो ब्रह्मा को हटा के उसमें गोंड कर दिया, हील कर दिया. दैट इज आवर सरनेम टॉक्स अबाउट आवर कास्ट. कोई बात नहीं, जो जिस परिवार में पैदा हुआ उसका थोड़ी दोष है, इसमें दोष की क्या बात है. कहीं ना कहीं तो पैदा होने वाला था बेचारा, आदि इधर हो गया, अनमोल इधर हो गई. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. वी कैनॉट कंट्रोल इट, इट इज नॉट इन आवर हैंड. The Gonds lived in the vast forested region called Gondwana land, or country inhabited by the Gonds. They practice shifting cultivation. You know what is shifting cultivation? Who knows? Shifting cultivation, who knows? आदि, शुभ्रा, अनमोल बताओ. यहाँ नहीं देखना है, बताओ यहाँ नहीं है. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन बताओ. ज्योग्राफी बुक में आपने पढ़ा है. Who will tell? मैम एक जगह से दूसरी जगह पर. ये तो ऐसा इंग्लिश ऐसा बोले, एक जगह से दूसरी जगह, तो हम तो नोमैड्स के बारे में बोल रहे हैं. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? मैम अपना पूरा सामान लेके कहीं और शिफ्ट होना. दैट इज नोमैड. बार बार इधर से उधर शिफ्ट होना. नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स you clear a patch of land in the forest. If there is a big tree in that land, they cut down. तुम्हारे ज्योग्राफी बुक में है, अमेज़न में देखो. Imagine the life in the Amazon is changing. उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है. And what they do slash and burn. This is also known as slash and burn method. कैसे? They cut down the trees. हम उसमें काट के आग लगा देते हैं नीचे. हाँ, स्लैश एंड बर्न, काटने के बाद उसको आग लगा के थोड़ी देर वहां पे प्रिमिटिव मेथड ऑफ टूल्स, जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टूल्स होता है, उसमें खोद काट के जमीन थोड़ी बहुत उगा लेते कुछ अनाज. फिर थोड़े दिन करने के बाद वहां से छोड़ के दूसरी जगह में चले जाते हैं. फिर वही मेथड चालू करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिल गया ना? हाँ, अनमोल दिखा रही है मुझे, देखो. हाँ, सबको मिला. फिर इसको पढ़ लेना, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है, चलो. शिफ्टिंग कल्टीवेशन. द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लान्स. ईच क्लान हैड इट्स ओन राजा और राय. आजकल जो बोलते हैं ना अभिनव राय, कोई भी नाम के पीछे राय, राय मतलब उन लोगों का राजा है. अबाउट द टाइम, ये जो मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है? यस मैम. What is he? He's an excellent and great writer of novels and or anything. हिंदी साहित्य में बहुत बड़े लेखक है. तो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम है राई, समराई. मैम धनपत राय. धनपत राय, यस, धनपत राय. His name is Dhanpat Rai. Yes, thank you, Adi. A few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama, यानी डायरी ऑफ अकबर. अकबर तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, डायरी कैसे लिखता था? ए हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन. ये इतिहास है उसके एरिया, उसकी जिस समय पे अकबर की जो शासन था उसके ऊपर किसी ने हिस्ट्री लिखी. अब अकबर कौन लिखेगा? उसका फ्रेंड लिखेगा. क्या है उसका नाम? उसका नाम भूल रही हूँ. एफ में उसका नाम है, एफ. फायजी नहीं है, उसका नाम एफ में है. उसका बेस्ट फ्रेंड और बहुत विद्वान व्यक्ति था जिसने दिनिलाई को लिखा है. मिला? अरे इसी में है, बुक में ही है. अकबर निकालो.
अकबर को जो फ्रॉक पहन के खड़ा है वो कहाँ है फोटो? मैम में आए। मैम अबुल फाजल। हाँ, अबुल फाजल और फायज, यस। अबुल फाजल है क्या? नहीं, फायज ही हो सकता है, फायज ही उसका फ्रेंड है। अभी बता दी, मैं क्यों नहीं कर सकते, सभी कर सकते। अकबर बहुत बड़ा चिंतक था, वो सोचता था ये देखो इसमें अकबर ऑर्डर, ये अबुल फाजल देखो, अबुल फाजल, ये सही बोला था ये। आर ऑर्डर टू राइट द हिस्ट्री ऑफ द पेज नंबर 53, उसमें लिखा हुआ है। अकबर जो एनी अकबरी है, INE, ये अकबरी और अकबरनामा, ए हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशन द गोंड किंगडम्स और घरकटंगा that had 70,000 villages. The administrative system of these kingdoms was becoming centralized. The kingdoms was divided into garas. Each gara was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 24 villages called Chaurasi. चौरासी 84 को हिंदी में क्या बोलते तुम लोग? मैम 84। 84 लिखा हुआ है। The 84 was subdivided into barhats, which were made up of 12 villages each. 12 शब्द का अर्थ है 12, लिख दो। यस मैम। छोड़ दो। हाँ, बाकी ये तो ऐसे ये पढ़ देती हूँ मैं। ये क्या इसका नाम, ये सब कोई नहीं पूछता एग्जाम। The emergence of large states changed the nature of bond society. They are basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahmanas received land grants from the Gond Rajas and became more influential. The Gond chiefs now wished to be recognized as Rajputs. So among us, the Gond Raja of Garakatanga assumed the title of Sangram Shah. देखो नाम कैसे चेंज कर दिया, संग्राम शाह। His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salvahan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. Dalpat, however, died early. Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son, Veer Narayan. नारायण का स्पेलिंग देखो कैसे, अंडर हर, ए वाई नहीं इसमें, नारायण। Under her, the kingdom became even more extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garakatanga. A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soon after. Garakatanga was a rich state. It earned much wealth by trapping and exploiting wild elephants to other kingdoms. वो क्या करता, हाथी पकड़ता था और पकड़ के राजा लोगों को दूसरी बेचता। जगहों पे बेच देते थे। हाँ, नहीं बेचते, राजा को बेचते थे, राजा को चाहिए ना हाथी। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. उनके पास था एलिफेंट रखा तो ले गए वो मुगल लोग डिफीट करके उनको। They annexed part of the kingdom and granted the rest of Chandrasa, to Chandrasa, an uncle of Veer Narayan. Despite the fall of Garakatanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Maratha. आज भी बुंदेल की लोग है ना, बुंदेलखंड तक जगह है, मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में? बुंदेल भाषा भी अलग है। दी एहोम लोग क्या है, असमी के लोग। वो कहाँ के लोग हैं? हम असम। आसाम। आप हम लोग को आसाम नहीं बोलना, असम। असम। आपको थोड़ा चबा के बोला असम, ऐसे असम। नहीं, जीव को नहीं ऐसा करो। आसाम। हाँ, आसाम। we must learn how to speak, how to read, है कि नहीं? पढ़ने के लिए आए तो सीखने के लिए आए तो सीखे। आदि को सर्दी नहीं लगता है? मैम जैकेट पहन के बैठा हूँ।
अच्छा, जैकेट पहन के बैठा हूँ, बैठा है। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present day म्यांमार। उसको म्यांमार जो है बर्मा, पहले इसका नाम था बर्मा, तो प्रेजेंट है उसमें क्या वो वैली था। इन द 13th century they created a new state by suppressing the older political system of the भूयाज। हमारे गांव में एक परिवार है, भूया लोग है। भूई मतलब जमीन। आज क्या करते हैं ना ये लोग ना, वो जो क्या होता है जिसमें छेद करते हैं, ड्रिलिंग मशीन, कैसा आवाज कर रहा है, मैंने गजेंद्र भैया को बोला ये बम्बैया लोग कहाँ से आए। बम्बैया मतलब बो आवाज करने वाला। भूइया मतलब भूई, जिसके पास भूमि में है ज्यादा, छोटा मोटा जमींदार, तो भूइया हो गया वो। मैं तो ऐसा बोलते, एक चिड़िया है ना टिटहरी, जानते हो टिटहरी का नाम मैम जानते हो? टिटोरी, मैम आँख फोड़ देती है। टिटहरी जो जमीन पे अंडे देती है। हाँ, जमीन बना देती है और यस मैम। टाई टाई करती है, तो उसका देखिए नाम मैम। हमारे उड़ीसा में उसको टंटैया बोलते हैं। टंटैया समझ में आ रहा है? हंसी आ रही है तुमको? टंटैया मैम स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में भी आई थी वो तो रहती है इधर, स्कूल में ही रहती है, जमीन पे ऐसी डराती है जैसे कि हमको मार ही डालेगी, अपना अंडा प्रोटेक्शन करने के लिए। द एहोम्स माइग्रेटेड टू द, हम लोग ऐसे ही हंसते हैं। टेंटैया आया तो टेंटैया चिड़िया का नाम टेंटैया, उसका एक्चुअली शुद्ध नाम है टिटैरी। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. They created a new state by suppressing the older political system. उसकी अंडा जमीन पे अंडा देती तो उसको कुत्ता नहीं कहा जाता है। मैम उसको चोंच मार मार के भगा देती है वो। अरे कहाँ चोट मार पाएगी, कुत्ते को क्या होगा, हमको भी डराती है। उसके अंडे तो खत्म हो जाते हैं। अरे वो फायर एंड सेफ्टी वाले आए थे अपना एग्जीबिशन करने के लिए, डिस्प्ले, उधर ही बच्चा देके बैठी है बीच में। बच्चा नहीं दिया है, मतलब अंडा के ऊपर बैठी, उसके अंडा को छू दोगे तो फिर उसका बच्चा नहीं आएगा उसमें। जब चिड़िया अंडा में चली जाएगी उससे। दूर तो चली गई पर उसके अंडे खतरे में आ गया। फिर मिश्रा सर ने बताया कि यहाँ पे अंडा है इसका। मैम अगर मैं अपन लोग मैम छू लेते हैं तो मैम वो उन्हें फेंक भी देती है, और अगर मैम किसी चिड़िया को भी छू लेते हैं मैम उसे मार डालती है। नहीं, दूसरा चिड़िया आएगा तो तुम मारेगी, उसका बच्चा है भाई। तुमको तुम्हारे पेरेंट्स प्रोटेक्शन नहीं देते? गुम होकर दिखाओ जरा कितना पागल है। तभी माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे हैं। तुम गुम हो जाओगे, तुम्हारे माँ बाप पागल हो जाते, बिल्कुल मेरा बच्ची खोई गई, मेरा बच्चा खो गया, तो उसका बच्चा है, उसका अंडे के अंदर उसके बच्चे हैं। तो फायर एंड सेफ्टी में थोड़ा उसको हटाया तो पूरा टाइम चिल्लाती रही टेंडरे करके, गला सूख गया, चुप बैठ, नहीं चिल्ला रही। उसका है ना वो अंडा उधर रखा था। चलो 1581 एंड सब्जुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स। तुम लोगों ने देखा लंच ब्रेक में ना, खेतों में भी देती होगी अंडा, से शाम में जाता है उसकी अंडा, और जमीन के ऊपर में भी देखी है। हैं। फुटबॉल ग्राउंड में देखी है। हाँ तो हमारे स्कूल में तो है, मिश्रा सर ने मुझे दिखाया था, मुझे तो पता ही नहीं था जो जमीन पर अंडा देती है। और जो जमीन पे बैठ जाती है ना तो पता नहीं लगता कि वहां बैठी हो। यहाँ जहाँ खो खो ग्राउंड है ना, वहां पे हमने देखा था। मैम वो मैम पत्थर दिखती है हैं? और मैम, बारिश का होने वाला होगा ना तो हल्ला करेगी, तो उसका नाम हम लोगों ने टेंटैया रखा। वो क्या करती सोचो, उसके नाम पे कहानी में बता देती है। वो रात को ना वो देखती है, रात को सोती है ना तो ऊपर को पाँव करके सोती है। क्यों? बादल गिर जाएगी तो उठा लेगी उसको पाँव में। ऐसा कहानी उसके बारे में, कहीं ना बादल ना गिर जाए तो ऊपर में पाँव करके सोती है। जमीन पे ही रहती, पेड़ में थोड़ी रहती। ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है कि उसने ना मोर के पैर ले लिए थे। फिर उस मोर ने मोर ने उसे शराब दिया कि तू कभी पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। यस मैम। कोई स्टोरी बनाई है किसी ने? हाँ तो होगा। तो हमने सुना है टेंटैया जो क्या करता है, वो रात को सोता नहीं, सोएगा तो दोनों पाँव ऊपर रख के सोता है। क्यों?
अगर बाई चांस आसमान गिरा तो ये उठा लेंगे। इसी चक्कर में ऐसा रहती है। कितने कहानी कैसे ऐसे बना देते गांव के लोग। The Ahoms built a large state and for this they used firearms. Firearms मतलब बंदूकें as early as the 1530s. मोर की तो पैर अभी भी है, पूरी पौधे खा जाती मोर। मैम ऐसी स्टोरी थी कि मोर मोर जो टीटरी थी वो आई, उससे बोली कि मेरे घर पे कोई आ रहा है, तुम्हारे बहुत सुंदर पैर है, मुझे दे दो, वो फिर तुम मेरे पैर ले लो। तो इसका तो बहुत पतला पाँव है। चिड़ियों के घर में भी कोई आराम मिल रहे। By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons. Cannons मतलब तो अच्छा, आप सबने अपना सिलेबस को करेक्शन कर लिया? यस मैम। यस मैम। सुब्रा क्लास में ही नहीं है क्या? सुब्रा जी आप क्लास में थे क्या? अभी क्या करना है इसके बाद? क्लास के बाद क्या करने वाले हो आप लोग बताओ? मैम पढ़ाई मैम। मतलब पढ़ाई? यस मैम। सोना वोना नहीं है दोपहर को? मैम नींद नहीं लगती। चलो, हमारा टाइम हो गया, हम लोग शांति पाठ करें। तो शांति शांति शांति। ऐसा क्यों कि मैं खाली खाली मैं ही कहानी सुना रही हूँ? तुम लोग भी सुनाया कर, जैसे आज टिटरी का सुनाया, ऐसे किसी दिन और तुम लोग भी एक कहानी सुना देना। साईराम मैम। मोर का पाँव लेके लगाया कैसे अपने पाँव में? मैंने कहानी में होता है, थी। कहानी में ऐसे कहानी होता है कि चिड़ी आना है, उसका पंख ले लिया। एक बार कौवा ने मोर का पंख लगा के ऐसे ऐसा चल रही लचक लचक, उसका चोंच दिख रहा है कौवा का, लोग कह रहे ये कौन जा रहा है, वो लचकने लगी, ऐसे मटकने लगी। अरे काले कौवे क्या कर रहा है तू? ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसे ही करते हैं बस। साईराम मैम।